Hi everyone, good evening, Jai Hind. So let us solve a very interesting problem. The problem says, do there exist 1,000 consecutive positive integers such that there are exactly 10 primes amongst them? So very interesting problem. Let me repeat the problem. Do there exist 1,000 consecutive positive integers? Consecutive positive integers, 1,000 of them, and it should contain exactly 10 of those numbers should be prime numbers. Okay, so let us try to start this problem. If I consider the first 1,000 numbers consecutive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up to 999 and 1,000. Okay, so if I consider this, how many prime numbers are there? If anyone knows, there are 168 prime numbers in the first 1,000 integers. But again, I want the set of consecutive integers, 1,000 of them, which contains exactly 10 primes. There are 168 prime numbers in the first 1,000 integers. तो ये हमारा integer तो नहीं है, set of integer तो नहीं है, which we want. We want some other set of integer if it exists, which contains exactly 10 prime numbers. यहाँ पे 168 prime numbers including 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. Now this problem, इस problem से हम एक और थ्योरी सीखेंगे, एक और बहुत अमेजिंग चीज सीखेंगे. If you do not know, if I ask you a counter question, ठीक है, अभी हम consecutive integers की बात कर रहे हैं, which contains primes. Do there exist 1,000 consecutive composite numbers? Do there exist 1,000 consecutive composite numbers? If you have done this problem, then of course you would know yes there exists, and you would also be able to tell कि किस तरीके से बनते हैं. ठीक है. For those who do not know, the answer is yes. And we'll try to form these consecutive integers because this is a very important part of the solution of that original problem. क्या 1,000 consecutive composite numbers ऐसे exist करते हैं? ऐसे consecutive composite numbers, 1,000 of them, such that there is no prime. It does not contain even a single prime. Now for this, guys, for this, let's consider a number 1,001 factorial plus 2. 1,001 factorial plus 2, 1,001 factorial plus 3, 1,001 factorial plus 4, 1,001 factorial plus 5, and so on up to 1,001 factorial plus 1001. Consider these numbers. How many numbers are there? It starts from 2, 3, 4 up to 1001. So can I say there are exactly 1,000 numbers? There are exactly 1,000 of these numbers, and if you look at it closely, each and every of these numbers is a composite number. इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं. Let's see how. See, यहां पर can I say 1,001 factorial is a multiple of 2. So यहां पर can I say this number is definitely of the form 2a1 because 2 यहां से common आ सकता है. Likewise, 1,001 factorial is a multiple of 3. If this is a multiple of 3, can I say 3 can be taken out common? 3 यहां से भी common आ सकता है. So this is 3a2. And likewise, this is 4a3. This is 5a4. This number is a multiple of 5. 1001 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. So 5 can be taken out common. Likewise, this number, इस number से 1001 common आ सकता है. 1001 common आ सकता है. इससे पिछला number कौन सा होगा? इससे पिछला number होगा 1001 factorial. 1 factorial plus 1000. Can I say this is also a composite number? So each and every number of this 1,000 consecutive integers is a composite number. So is it possible that 1,000 consecutive integers exist? The answer is yes. हमने प्रूव कर दिया. ठीक है. अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो 1,000 ही क्यों? यहाँ पे कुछ और नंबर भी आ सकता था. ये सेम चीज हम 10,000 के लिए भी कर सकते हैं, या 1 लाख के लिए कर सकते हैं, 1 करोड़ के लिए कर सकते हैं. राइट. यहाँ पे कितना है? This is 10 lakh. Do there exist 10 lakh consecutive composite numbers? The answer is yes. Do there exist 10 lakh consecutive composite integers? तो क्या भाई क्या करो, 10 लाख 1 को a लिख दो, 10 लाख प्लस 1 को a लिख दो. So consider a factorial plus 2, a factorial plus 3,
a factorial plus 4 up to a factorial plus 10 lakh 1 which is a. ये टोटल 10 लाख नंबर्स हैं, ये टोटल 10 लाख नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और सारे के सारे कॉम्पोजिट हैं। सारे के सारे कॉम्पोजिट कैसे प्रूव करेंगे हम? सर अगर ये मुझे प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट कैसे है, तो यार a फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 up to so and so on। कहने से इन दोनों से 4 कॉमन निकाल लिया, तो अगर 4 कॉमन निकाल लिया तो समथिंग प्लस समथिंग, तो 4 into समथिंग हुआ ना, which is definitely a composite number, right? So do there exist 10 lakh consecutive composite integers? The answer is yes. Do there exist n consecutive composite integers? Composite integers and n can be very large also. Answer is yes. तुम अगर बोलो कि सर ऐसा पॉसिबल है कि 1 करोड़ कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट इंटीजर्स हों, आंसर है यस, होंगे ही होंगे और हमने प्रूव कर दिया। क्या 10 करोड़, 1 लाख करोड़, क्या 5 ट्रिलियन कॉम्पोजिट कंसेक्यूटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज यस, करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सो n कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट इंटीजर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे और किस तरीके से बनते हैं वो हमने कंस्ट्रक्शन बता दिया, ठीक है। अब हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, इस पे prove that there exist 1000 consecutive positive integers such that exactly 10 of them are prime। so हमने ना ये 1000 integers रख दिए थे, पहले 1000 integers, और हमने बोला था ये नंबर्स तो नहीं है बिकॉज इसके अंदर 168 प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे जो प्रॉब्लम तुम्हारे दिखाई दी है, इन तरह की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम्स। एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम्स बिकॉज समथिंग पोजेसेस सम प्रॉपर्टी। तो हम इसको क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक चीज ऐसी, मतलब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा इन नंबर्स के अंदर जो कि सम प्रॉपर्टी को फॉलो करे। वो प्रॉपर्टी इस केस में क्या है, इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल fa into fb व्हिच इज लेस देन 0। fx एक पॉलिनोमियल है एंड अगर हम बोलें कि a और b ऐसी दो वैल्यूज हैं कि fa into fb इज लेस देन 0, देन f of x is equal to 0 हैज डेफिनेटली अ रूट इन a and b। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं नंबर लाइन पे a और b दिखा दूं, f of a into f of b लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, a पे वैल्यू पॉजिटिव है, b पे वैल्यू नेगेटिव है। या तो ऐसे जाएगा, या फिर उल्टा जाएगा, या फिर घूम के जाएगा, ऐसे करके यहां पहुंचेगा। तो a से b के बीच में फंक्शन एक बार x एक्सिस को कट करेगा। तो सर आप बोलोगे सर हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, आप पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हो, तो भाई लॉजिक इज द सेम। सो दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अ गेम ऑफ लॉजिक। ये हमेशा लॉजिक पे डिपेंड करता है। अब देखो इसी लॉजिक को, ऑल्दो हम पॉलिनोमियल्स यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये पॉलिनोमियल का लॉजिक हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं इस एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि देयर विल डेफिनेटली एग्जिस्ट 1000 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, 1000 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट इंटीजर्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। क्या वो ये है? वो ये तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर तो 168 प्राइम नंबर्स है। वो 1000 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट इंटीजर्स को लिख लेते हैं, ठीक है, 1000 consecutive composite integers को लिख लेते हैं। So let a is 1001, a is 1001। so पहला नंबर होगा a factorial plus 2, a factorial plus 3, a factorial plus 4, a factorial plus 5, a factorial plus 1001। ये 1000 composite integers है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लास्ट की 2-3 टर्म्स और लिख लेता हूं। So a factorial plus 999, a factorial plus 1000, a factorial plus 1001। So we know that हमने अभी प्रूफ किया कि ये जो 1000 consecutive integers हैं, इनके अंदर कितने प्राइम्स हैं? एक भी प्राइम नहीं है, इनके अंदर एक भी प्राइम नहीं है, और इसके अंदर 168 प्राइम्स है। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे consecutive integers चाहिए जिसके अंदर एग्जैक्टली 10 प्राइम नंबर्स हो, 10 प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। चलो अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर ना इससे यहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे यहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? यहां से एक नंबर कम करेंगे और यहां पर एक नंबर बढ़ा देंगे, मतलब ये नंबर हटा दो और ये नंबर बढ़ा दो। तो अगली जो चेन होगी वो ये होगी a फैक्टोरियल प्लस 1, a फैक्टोरियल प्लस 2, a फैक्टोरियल प्लस 3, a फैक्टोरियल प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू a फैक्टोरियल प्लस 1000। यहां से एक नंबर कम हुआ और यहां से एक नंबर बढ़ गया। अब क्या हो सकता है? अभी यहां पर 0 प्राइम नंबर्स थे,
यहां पर जीरो प्राइम नंबर थे, यहां पर आई डोंट नो ए फैक्टोरियल प्लस वन प्राइम होगा या नहीं होगा, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे बोलते मैक्सिमम एक प्राइम हो सकता है, मैक्सिमम एक प्राइम, मैक्सिमम वन प्राइम। भाई बाकी सब नंबर तो सेम है ना ऊपर वाले, यही तो चेंज हुआ, ये तो ऐड हुआ, ये हट गया, ये तो वैसे ही प्राइम नहीं था, ये हट गया, ये हट गया, और यहां पर मैंने ये नंबर ऐड कर दिया, एक नंबर पीछे चल गया, तो ये पेन, ये जो चेन है ये इसकी तरफ बढ़ गई, इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी तरफ बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पे मैक्सिमम एक प्राइम होगा, मैक्सिमम वन प्राइम। आई होप जो बच्चे इस लॉजिक को समझ चुके हैं उनको समझ में आ रहा है कि मैं कहां पे जाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सेकंड चीज, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक नंबर यहां से उठाऊंगा और यहां पे एक नंबर ऐड कर दूंगा, तो यहां पे क्या होगा, ए फैक्टोरियल प्लस वन, ए फैक्टोरियल प्लस टू, ए फैक्टोरियल प्लस थ्री, ए फैक्टोरियल प्लस फोर, एंड सो ऑन, यहां पे लास्ट में ए फैक्टोरियल प्लस 999। ये हट गया, ये भी 1000 नंबर्स है। इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर देखो क्या हो सकता है, ये नंबर हटा और यहां पे ये नंबर ऐड हुआ, देखा। अब यहां पर क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन, यहां पर मैक्सिमम टू प्राइम्स, तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर यहां पे एक प्राइम था, यहां पर दो प्राइम हो सकते हैं, जीरो प्राइम हो सकते हैं और वन प्राइम हो सकता है, तीनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर सपोज यहां पर एक प्राइम, अगर यहां पर एक प्राइम है, आई डोंट नो कि ये प्राइम है या नहीं, बट अगर ये प्राइम है तो यहां पर अगर ये नंबर भी प्राइम है, हालांकि ये कॉम्पोजिट है, बट अगर ये नंबर प्राइम होता तो यहां पर दो प्राइम हो जाते, अगर ये नंबर प्राइम ना होता तो एक ही प्राइम रहता, और अगर ये नंबर कॉम्पोजिट होता तब खत्म हो जाता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, या तो नंबर ऑफ प्राइम इंक्रीज करेगा बाय वन या डिक्रीज करेगा बाय वन, या फिर सेम रहेगा। सो कहने से अगर मैं ये करता रहूंगा तो इन एवरी सब्सिक्वेंट स्टेप द नंबर ऑफ प्राइम्स ईदर इज गोइंग टू इंक्रीज बाय वन, और इट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय वन, और इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल अगला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा ना, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी a फैक्टोरियल minus 1, a factorial plus 1, a factorial plus 2, and so on up to a factorial plus 998। तो मैंने इसको हटा दिया और इसकी जगह ये वाला पिछला नंबर लिख दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तो प्राइम नहीं था, ये तो कॉम्पोजिट है, हमें पता है, बट ये प्राइम भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है, और प्राइम हो सकता है, कॉम्पोजिट हो सकता है। दिस कैन बी प्राइम और दिस कैन बी कॉम्पोजिट। तो अगर ये कॉम्पोजिट है और ये भी कॉम्पोजिट है तो नंबर ऑफ प्राइम तो चेंज ही नहीं होंगे, बट अगर ये कॉम्पोजिट था बट और ये प्राइम निकला तो नंबर ऑफ प्राइम्स इंक्रीज हो जाएंगे वन से, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां पे मैक्सिमम टू प्राइम्स होंगे, आई होप दिस इज क्लियर। तो जब मैं ये बोलता हूं कि जब मैं ये करता रहूंगा जितने मर्जी बार, बहुत टाइम लगेगा, करता रहूंगा, अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू रीच हियर, and in every step the number of primes are getting increased by 1 or decreased by 1, or it is going to make no difference। हर बार ऐसे ही होगा, या तो 1 से इंक्रीज होगा नंबर ऑफ प्राइम्स, या डिक्रीज होंगे, या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां पर इससे 0 प्राइम से 168 प्राइम से पहुंचूंगा, 0 प्राइम से 168 प्राइम से पहुंचूंगा। तो कहने से इन बिटवीन एक ऐसा स्टेज आएगा ही आएगा जब यहां पे एग्जैक्टली 10 प्राइम्स होंगे, आएगा कि हो सकता है मल्टीपल स्टेजेस हैं, बट एक तो आएगा ही आएगा, एंड हेंस वी हैव प्रूवन दैट देयर वुड डेफिनेटली एग्जिस्ट 1000 consecutive positive integers such that there are exactly 10 primes। अब तुम बोलो सर ये तो पता ही नहीं है, अगर हमें ये नहीं पता होता तो क्या करते, बट ये तो पता है ना कि 1000 consecutive में 10 से ज्यादा प्राइम्स हैं, वो वैसे तुम काउंट कर सकते हो, 1000 कंजेक्टिव में 10 से ज्यादा प्राइम है, तो अल्टीमेटली तुम्हें 0 प्राइम से एक एक करके यहां तक आना है जहां पे 10 से ज्यादा प्राइम है, और हमें पता है हर स्टेप के अंदर नंबर ऑफ प्राइम्स जो है या तो इंक्रीज करेगा बाय 1 या डिक्रीज करेगा बाय 1, या फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सपोज ये कॉम्पोजिट नंबर है, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर ये प्राइम नंबर है, बिकॉज अभी तो सारे कॉन्जेक्टिव जब चेंज होता रहेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, बट यहाँ पे अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर हटके कॉम्पोजिट नंबर बढ़ गया तो नंबर ऑफ प्राइम डिक्रीज बाय 1, और अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है और यहाँ पे प्राइम नंबर ऐड हुआ तो नंबर ऑफ प्राइम इंक्रीज बाय 1। आई होप you've gotten this, right? So this is a very beautiful problem on something which is called existence problem, ठीक है। something possesses some property,
आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड, एंड अगर मजा आया जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, एंड मेक श्योर यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस, राइट। सो इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करते रहते हैं। इनफैक्ट इस तरह के प्रॉब्लम्स हम अपने कोर्सेज के अंदर भी कराते रहते हैं। इफ यू वांट यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज। द बैच which is going to reach start very soon is going to be IOQM weekday batch that is going to start from 24th of May. ये 3 days a week चलेगा, Tuesday, Thursday, Saturday, 9 रात को 9 बजे 9 to 10:30 p.m. It is going to be taken by Anirudh sir, and he is the only teacher in India who is a pass out from ISI, both bachelors and masters. Okay, so this is going to have 45 classes plus additional NMTC classes, and all of these things which are related to IOQM are going to be given to you. Right, so all the things which are related to IOQM are going to be discussed in this particular batch, and the batch price is 10,999. If you opt for the book, then it is 11,499 rupees. Okay, and then there are level 5, level 6, level 7 batches that you can join. The links are there in the description box. Take care. God bless you. Bye everyone. Hope you've enjoyed the video.